Hello dear student, welcome to Dakshinai classroom and let's start solving our DRT 7 problems. जितने भी प्रश्न थे all from organic chemistry and some of the name reaction, some basic concepts, some mechanism, सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी. So let's start solving the questions. पहला प्रश्न है that is Gabriel's thalamide synthesis is an example of. So what we should know that Gabriel's thalamide reaction or synthesis, this is used to synthesize primary amine from halides. ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, ऐसे प्रश्न को कैसे समझना है. सो यू शुड नो व्हाट इज Gabriel's thalamide reaction. आई एम गोइंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट पार्टिकुलर रिएक्शन. उस रिएक्शन को हल्का सा मैं डिस्कस करके आपको आंसर बताने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है. And what happens generally we have पहला जो स्टेप होता है that is called deprotonation. क्या होता है deprotonation? Okay, so you have this molecule hydrogen here. Okay, so hydrogen here. What exactly we are doing in this Gabriel's thalamide synthesis? We are making primary amine from alkyl halide. So I'm not going to tell you whole mechanism, just giving. मैं ऐसा बताना चाहता हूँ ताकि आपको याद आ जाए. क्या करते हैं, KOH का यूज करते हैं. जनरली क्या होता है, we have not KOH, we are using this is O18 negative. ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है and you are getting N negative. And what exactly we are synthesizing it from RX. This is called alkyl halide and we are replacing this X with R NH2, a primary amine. So we are doing a substitution reaction. Okay, so क्या कहते हैं, this particular reaction is called substitution reaction and this is nucleophilic. क्यों, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो रहा है. this will attack here, यहाँ पे R ग्रुप आके जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन and then this particular group जो है वो अलग हो जाएगा and you will get this RNH2. so this is nucleophilic substitution reaction, not addition. ठीक है, नॉट फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन 2 में दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. AgCN और KCN का अलग अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनता है. यूजिंग AgCN एंड KCN आपका प्रोडक्ट अलग बनता है. कारण छुपा हुआ है द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट AgCN हैव एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड KCN हैव. लेट्स सी दिस. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वी हैव CH2 and chlorine here. Now when we are using this particular substrate with AgCN की बात हम करना चाहते हैं तो क्या होगा. AgCN को मैं लिख देता हूँ this particular bond Ag, this bond is covalent in nature. This is covalent in nature. That's why what happens, this carbon will attack, this will go like this will come like this. Okay, so क्या होगा, and after that जब ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे से कनेक्ट होगा and we will be getting product like CH3 CH2 नाइट्रोजन and then C. क्यों, ऐसा कारण इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉन्ड जो है, दिस पार्टिकुलर बॉन्ड इज कोवैलेंट इन नेचर. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर यूजिंग KCN. सो अगर हम KCN यूज करते हैं, CH3 CH2 chlorine here. The moment we are using KCN, what we know that KCN, that bond of K and C between potassium and carbon is ionic in nature. It means it maximum chances आते हैं कि वो क्या होगा कि पॉजिटिव आयन एंड साइनाइड नेगेटिव आयन के रूप में वो घूमता रहेगा. What does it mean? It means that we have CN
negative, and this negative will attack here, and what we are getting is the bond between this carbon and this carbon will be made. So CH3, CH2 and C. ठीक है. सो ये जो प्रोडक्ट में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो बस इसीलिए है कि जो बॉन्ड होता है Ag और कार्बन का वो कोवैलेंट होता है, और जो बॉन्ड K और CN, K और कार्बन का होता है जो वो आयनिक होता है. ठीक है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, आप आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 3 क्या है? आसान सा प्रश्न है. वी हैव अ गिवन मॉलिक्यूल. क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सी. क्वेश्चन 3 वी हैव समथिंग लाइक दिस कार्बन हियर, then we have C2H5 methyl group, then we have phenyl group here, and then we have Br. Now what we are doing is H2O से हम इस पर क्या अटैक करवा रहे हैं. So H2O पे अटैक करवा रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा. सो दिस विल व्हाट वी विल बी गेटिंग. सो बताइए, कार्बोकेटाइन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर मॉलिक्यूल. सो ये प्लेन होगा. सो समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे आपका फेनिल ग्रुप है, बैक साइड आपका क्या है? मिथाइल है, और यहाँ पे आपका C2H5 है. कहाँ पे है? दिस इज पॉजिटिव चार्ज. सो ये इस प्लेन में है, इस प्लेन में है. नाउ इफ यू सी दिस इज द योर कार्बोकेटाइन, पॉसिबिलिटीज इज OH, H2O will attack from up and the from down. So H2O जो है क्या हो सकता है? H2O, let me write OH2. OH2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जो लोन पेयर है यही तो अटैक करने वाला है. So it either can attack from top and from bottom. 50-50 चांस है, 50-50 चांस है. तो जब 50-50 चांस है तो क्या होगा बताओ? 50-50 चांस है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा C2 और लेट मी राइट ET, ethyl group, ET carbon here. So you will get OH phenyl here, or 50% C ET OH here. 50-50. ठीक. तो दोनों मिक्सचर ऑफ आपका पहला प्रोडक्ट एंड दूसरा प्रोडक्ट दोनों हमारा बनने जा रहा है. कारण क्या है? क्योंकि वो प्लेनार होता है और 50% चांस टॉप से एंड 50% चांस बॉटम से अटैक करने का होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक. सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. तो SN1 रिएक्शन में क्या हमें पता है? स्टेप नंबर 1 कार्बोकेटाइन बनता है. सो कार्बोकेटाइन बनेगा यानी कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे रिएक्शन आधारित होता है. सो क्या है? हमें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या देखना होगा? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. अगर हमने ये पता कर लिया कि कार्बोकेटाइन कौन ज़्यादा स्टेबल है तो हम देख सकते हैं कि वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन होगा. पहला जो प्रोडक्ट है, मैं पहले प्रोडक्ट को ही देखूंगा. तो पहला प्रोडक्ट है वो क्या होगा बताओ? व्हाट इज द प्रोडक्ट? सॉरी, ठीक है. तो इसका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ये है. अब क्या मुझे बताओगे कि इसके पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है? बताइए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्या है इसके पास? इसके पास है एक्स्ट्रा एबिलिटी दैट इज कॉल्ड, दिस इज एरोमेटिक. दिस इज एरोमेटिक यानी कि ये जो बंदा है, ये जो स्पीसीज है वो बहुत स्टेबल होगा. जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा. ये जाकर पढ़ा तुरंत रिएक्ट कर लेगा. दूसरा अगर देखो तो यस, आपका C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस इज फाइन बट दिस पार्टिकुलर इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड. सो दिस इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, इसलिए ये सबसे आगे निकल गया. दिस इज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. क्वेश्चन 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन 5 क्या है हमारे पास? इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस एज इनकमिंग nucleophile is I negative, then bromide negative, and then chloride negative. The order of halogens as a departing living groups should be.
सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी के आधार पे ही आपको करना पड़ेगा। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से उसकी एबिलिटी होगी डिपार्ट करने की। तो देख लो भैया, आई नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, आई नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा, आसानी से जाएगा। ब्रोमाइड नेगेटिव एंड देन कम्स क्लोराइड नेगेटिव। किसके आधार पे करना है आपको, इसके स्टेबिलिटी के आधार पे अरेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN1। क्वेश्चन नंबर 6, rate determining step, the slowest step is called the rate determining step। एंड आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जब जनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जब ये फॉर्म होता है तो दिस इज कॉल्ड द स्लोएस्ट स्टेप एंड यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग आइडेंटिफाई द रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन in the following compound when allowed to react with alcoholic KOH। So question number 7, so what we are doing, alkyl halide plus alcoholic KOH। क्या होता है, ये बनाता है सजफ प्रोडक्ट, यानी कि सजफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि जो सबसे सब्स्टिट्यूटेड मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो उसको बनाना आसान होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा पहला है दिस पहले नंबर पे आएगा कौन सा, 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है, ये आगे निकल जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, दिस इज सेकेंडरी वन, ये दूसरे नंबर पे आएगा। एंड तीसरे नंबर पे आएगा आपका, तीसरे नंबर पे आएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SN2 रिएक्शन इज, आपको पता है SN1 2 स्टेप होता है, SN1 सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है और ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। चलो देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ग्रेटर इज द चांस ऑफ SN2, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन बल्कीनेस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड। यस, आपको पता है कि एक तरफ से अप्रोच करता है, दूसरी तरफ से लिविंग ग्रुप भागता रहता है, पर जब बल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो अप्रोचिंग ऑफ द स्पेसीज है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो SN2 रिएक्शन में आप जो है बल्कीनेस कम रखें तो ज़्यादा फायदा क्रिएट करेगा। ऑप्शन नंबर 3 बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिपेंड करता है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आई थिंक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इनकरेक्ट ऑप्शन, सो यस दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, एक सिंपल सा रिएक्शन है, देखते हैं कैसा रिएक्शन है, जाना पहचाना रिएक्शन है ये। बेंजीन के साथ आप क्या करो, CH3Cl AlCl3 क्या करेगा, ये जाके इस मिथाइल ग्रुप को वहां पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो एक मिथाइल ग्रुप आ गया है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट होके आ गया है। दूसरा जो स्टेप है वो KMnO4 है। KMnO4 का काम है जितने भी साइड चेन हैं, साइड चेन को जितने भी बेंजीन में हाथ लगे हुए हैं सबको वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके COH ग्रुप में बदल देता है। तो बदलिए भैया, तो जब आप मिथाइल है, इथाइल रहे, प्रोपाइल कुछ भी रहे, सबको जो है वो बदल देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये KMnO4 के साथ करता है और जब आप उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो क्या हो जाता है, बताओ, ये हो जाएगा आपका साइड चेन जो है टोटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास है एक मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। क्वेश्चन 10,
ठीक है, एक ये इसमें NO2 है, ठीक है, एक और बेंजीन रिंग है हमारे पास एंड मिथाइल ग्रुप। अब ध्यान से देखो हमारे पास है HNO3 H2SO4, जब ये एक साथ में रहें, ठीक है, जब भी ये साथ में, इसका क्या मतलब होता है, ये दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का क्या मतलब है कि ये नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना चाहते हैं, तो नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना तो अच्छी बात है, पर कहाँ पे ऐड करेंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। सो देखते हैं। अब देखो ये NO2 क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, तो कैसा होगा, ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, बताओ कैसा होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो पूरा एक्सटेंडेड कंजुगेशन की बात है ना, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, तो ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, दिस टू पोजीशन आर हाईली न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, मतलब कि वो काफी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। कौन कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ रखी है यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रखी है तो सिंपल सी बात है, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दीजिए वहां पे, तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे आके नाइट्रो ग्रुप आपका जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज योर प्रोडक्ट, नाइट्रो ग्रुप कहाँ गया, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दीजिए, और किसके पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उस पर अटैक ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन 1 फिनॉल, OH, ऑप्शन 2 क्लोरीन। ठीक है, सो बाकी के देखो, नाइट्रोबेंजीन जो है वो तो रिंग को डीएक्टिवेट ही कर देता है, बट यस OH जो है, OH रेजोनेंस से क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण क्या करेगा, ये पार्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, सिमिलरली आपका जो ये पार्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो दो पार्ट ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी होती है। क्लोरीन भी करेगा, पर जो है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस थोड़ा सा कम होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे O जो है रेजोनेंस काफी अच्छे से दिखाएगा, अपने लोन पेयर को बेंजीन रिंग में भेज के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो यस फिनोल विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, फिर से हमारे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, मिथिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग, and we have CH3 here and we have OH here, so we have HNO3, H2SO4, it means nitrating mixture, it means NO2 ग्रुप को कहीं ऐड कीजिए, तो इसमें कौन ये करेगा, ये बताएगा कि कहाँ पे आपको ऐड करना है, तो ये पोजीशन पे ऐड कर पाते हैं, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी मिथिल है, तो आपके पास क्या बचा, ऑर्थो जो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन ही बचा हुआ है, वहीं पे आप ऐड कर सकते हैं। चलो ऐड करते हैं, क्या दिक्कत है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे NO2 ऐड कर दिया। चलो NO2 ऐड कर दिया, फिर अगला जो प्रोसेस है, अगला जो स्टेप है वो क्या है, एक इसी मॉलिक्यूल में एक और अगला स्टेप बोला गया है करने के लिए, क्या है वो अगला स्टेप हम देख लेते हैं। H2S2O7, यानी कि अब आपको क्या करना है बताओ, अब आपको SO3H ग्रुप को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करेंगे, SO3 भी एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो प्रॉब्लम है भाई, कहाँ पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन से पूछे भाई आप बताओ कहाँ पे जाओगे, तो वो बोलेगा कि मेरा तो मानना ये है कि एग्रेगेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं दूसरा वाला, मेरा तो मानना ये है कि आप फिर से जो है ये ऑर्थो पे बढ़ाइए, तो बोलेगा कि नाइट्रो ग्रुप भी तो है, नाइट्रो ग्रुप भी तो वो भी तो कुछ इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको पता है कि नाइट्रो भी हो पैरा डायरेक्टिंग होता है, नॉट पैरा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रो का मेटा ग्रुप इज दिस वन एंड ऑक्सीजन का ऑर्थो ग्रुप इज आल्सो दिस वन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके
OH यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे है और SO3H यहाँ पे है। तो ये CH3 पहले से था यहाँ पे, तो ये आपका प्रॉपर लास्ट वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा है, बस थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो भी रिएक्शन आपने अभी तक पढ़ा है उसका। क्वेश्चन नंबर 14 ना 13, क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, हमारे पास है एक CH3 जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा है, CH3, और जब इसको KMnO4 के साथ कराते हो, अभी तो हमने देखा था KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, क्या है H+ है और हीट कर दिया, तो जो भी है अगल बगल सबको ऑक्सीडाइज कर दीजिए, तो CH3 ही है, तो आपने इसको जब ऑक्सीडाइज किया है तो बनेगा COOH। बहुत अच्छी बात है। अगला प्रोसेस क्या है, NaOH CaO, इसका काम है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको उड़ा देता है CO2 के रूप में। यस वी हैव वन। सो इसको फिर से जब आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो तो जो COOH ग्रुप है उसको क्या करेगा बताओ, NaOH COO अगर आपने किया है तो इसको गायब कर दीजिए, यानी कि -CO2 हो जाएगा और यू विल गेट दिस पार्टिकुलर बेंजीन रिंग। तो बहुत ही अच्छा तरीका है आपको बेंजीन रिंग बनाने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 की बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या है, आपके पास एक बेंजीन रिंग है और ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन के अंदर ये क्या करेगा बताओ, वी हैव CH3 COCl and AlCl3। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो क्या होगा, ग्रुप जोड़ दीजिए यहाँ पे, कौन सा क्लोरीन को हटाइए और ये जो बॉन्ड इसको कनेक्ट कर दीजिए, तो क्लोरीन को हटाया और ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल निकल के आ गया। चलो इसके बाद जब ये है आपका सबस्ट्रेट और इस सबस्ट्रेट में क्या करना है, हमारे पास है जिंक अमलगम और HCl। क्या इस रिएक्शन को सब लोग जानते हैं, इसको क्लेमेंसन रिडक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन का क्या काम है, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो O है उसको लेके गायब हो जाता है, यानी कि वो आपके कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में बदल देता है, ऑक्सीजन को गायब कर देता है। क्लेमेंसन रिडक्शन के अंतर्गत इस रिएक्शन को आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 is saying we have MgBr, Grignard reagent, my favorite Grignard reagent. We have MgBr. Now we have D2O. Wow, D2O not H2O, D2O। D2O का क्या मतलब है, D यहाँ पे होगा, O यहाँ पे होगा, D यहाँ पे होगा, क्या होगा 1 2 3 बताओ कौन सा पोलर बॉन्ड है, ये ऐसे गया, सॉरी कौन सा है, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, क्लियर? नो, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा सा ही दूं ताकि देखने में अच्छा लगे, ये बड़ा सा MgBr। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत कम, कार्बन 2.5, डिफरेंस इज हाई, सो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट किया गया है, कार्बन की तरफ। डी यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो क्या होगा 1 2 3 4 डॉट विल गिव यू 4 मार्क्स। ये ऐसे गया टूट के, 1 2 3 4 ये ऐसे गया टूट के, तो क्या बनेगा बताइए, आपके पास बनेगा याद रखिए, ग्रिग्नार्ड एजेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है एसिडिक H+ आयन। एसिडिक H+ आयन अगर आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट के सामने रखा सो यू विल गेट दैट पार्टिकुलर अल्केन और पार्टिकुलर हाइड्रोकार्बन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ था। तो ये सारी बातें आप जानते हो। हॉफमैन रीअरेंजमेंट का एक रिएक्शन इन्होंने दिया है, जो दिया है मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 में।
क्वेश्चन नंबर 60 में हॉफमैन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सो वी हैव अमाइड, वी हैव डबल बॉन्ड O, वी हैव NH2, दैट इज कॉल्ड अमाइड ग्रुप। इसको क्या किया आपने, Br2 के साथ रिएक्शन किया और फिर क्या किया, कुछ मोल ऑफ KOH लिया और ये आपको रिएक्शन के बाद क्या देता है, K2CO3 कार्बोनेट एंड क्या देता है 2 मोल्स ऑफ KBr, बहुत अच्छी बात है। और फिर क्या देता है 2H2O भी देता है और क्या देता है RNH2, एक प्राइमरी अमीन। तो आपको पता है दिस इज हॉफमैन रीअरेंजमेंट, जिससे आप अमाइड से प्राइमरी अमीन बना लेते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ नहीं रहा है आपसे रिएक्शन, पूछ रहा है ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन हमने आपको दिया है इसको आप बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के रूप में देखिए और बताइए कि KOH का कितना मोल है। ये तो सो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपने शायद 3rd क्लास में ही सीखा होगा। क्या सीखा कि जितने लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में कार्बन होंगे, जितने लेफ्ट हैंड साइड में पोटासियम होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में पोटासियम होंगे। गिन के देख लेते हैं, 2 पोटासियम यहाँ पे, 2 पोटासियम यहाँ पे, कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ऑप्शन में 4 ढूंढेंगे और आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 1717। दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। हाँ ठीक है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, फ्री रेडिकल मेथड होता है। और वी हैव मिथाइल एसिटाइलिन, मैं लिखता हूं मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। अब इसका मतलब क्या है, इस तरीके से दिया है कि सारे लोग पागल हो जाएंगे, सर मिथाइल एसिटाइलिन कैसे लिखें। दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलिन ग्रुप। तो क्या ये प्रोपाइन नहीं है, प्रोपाइन है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन में से किसमें से इस प्रोपाइन को बनाया जा सकता है। देखते हैं, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है हमारे पास। पहला जो सबस्ट्रेट है वो क्या है बताइए, CH3, C डबल बॉन्ड CH, COOK, COOK। आपको क्या पता है, ये एक फ्री रेडिकल मेथड होता है। तो ये एक यहाँ से गया, ये एक यहाँ से गया, ये एक इस पे जाएगा, ये एक इस पे जाएगा। 2 moles of CO2 will go out and what you will be getting is CH3 then C triple bond CH। यस, पहला जो है वो हमारा दे रहा है प्रोडक्ट, बहुत अच्छी बात है। दूसरा की बात करते हैं, CH COOK, COOK। तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, एक डॉट इस पे, एक डॉट इस पे। सो 2 moles of CO2 will go out and what we are getting is CH triple bond CH। भाई साहब ये इथाइन है, हमें चाहिए प्रोपाइन। गलत बात है, ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, तो थोड़ा सा अगर दिमाग अगर लगाते तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस तो होने वाला नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया है और मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, ये तो सिंगल करेक्ट है। तो क्या हमें ऑप्शन नंबर 3 चेक करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, 1 नंबर को टिक लगाना चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए था। फिर भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव COOK, वी हैव CH2 COOK। So we have CH3 here, CH2 here और शायद ये CH है। ओके चलो भैया करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, चलो ठीक है। तो ये क्या आएगा, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। 2 moles of CO2 will go out and we will be getting carbon 1 2। So 1 carbon, 2 carbon, then 3 carbon will be having triple bond, 3rd carbon will be। So this is called butane, not propine। ठीक है, ये क्या है, ब्यूटाइन दे रहा है प्रोडक्ट हमारा। सो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। ऑल ऑफ दिस आंसर हो नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 क्या बोलता है, हमारे पास है बेंजीन और उसको आप O3H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हो। O3H2O इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस एंड दिस पार्टिकुलर ओजोनोलाइसिस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, सो वी हैव बेंजीन। सो इसका केकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दिस इज गोइंग अंडर ओजोनोलाइसिस एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। H2O2 है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड पे धावा बोलिए। सो वी हैव, दिस इज डबल बॉन्ड यहाँ,
यहाँ एंड यहाँ, व्हाट विल बी गेटिंग COH ऑन द बोथ साइड। सो पहले इस पार्टिकुलर को लिखते हैं, कौन सा, इसको देख के देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये है O, ये डबल बॉन्ड OH, ये डबल बॉन्ड OH। तो आप देखो ध्यान से, ये एंड ये, ऑल द थ्री आर सेम, सो वी हैव 3 मोल्स ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो दिस इज वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। डाइक्लोरिडो फ्लोरो मीथेन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक दिस इज CF2Cl2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 है। क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। अब वी हैव अल्काइन एंड पूछ रहा है कि आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या है। इसमें एक बार ध्यान रखेंगे कि हमारे पास HCl बहुत है, कम नहीं है, HCl की कमी नहीं है हमारे पास, बहुत है HCl, ठीक है। तो एक ही क्लोरीन नहीं, बहुत सारे क्लोरीन ऐड हो सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 20 में क्या है, वी हैव C, देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा बताओ। पहले आएगा यहाँ पे, क्या होगा बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या होगा बताओ, ऐसे जुड़ेगा। एंड व्हाट वी विल बी गेटिंग इज, ये जो डॉट है आपको 4 नंबर देने वाले हैं, 1 2 3 है, क्लोरीन आके यहाँ जुड़ गया है, और ये डबल बॉन्ड है CH2 हो गया है, ये C हो गया है। क्या इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, करेक्ट, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। उसके बाद अगला बताओ क्या होगा, अगला क्या होगा बताओ। अगले में अब आपके पास होने जा रहा है जो अगला HCl है वो भी आके अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो बताओ, एक यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड CH, क्लोरीन, तो क्या होगा, chlorine here, hydrogen here, 1 2 3 4, 1 2 3 4, like this, not this is like this, sorry. So you will be getting chlorine आके वापस से उसी पे आएगा। सब बोलोगे कोई रूल आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये एक छोटा सा रूल कहीं आपने सुना होगा, ये उसी को फॉलो कर रहा है। व्हाट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, दैट इज द क्लोराइड आयन। सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके पास है, तो चलो जाओ उनके पास और आराम से मजे करो, एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर 21, Question 21 is we have ethine again, and this is called hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation reaction है, देखते हैं क्या हो रहा है। We have ethine, so I'm just writing the C triple bond CH। क्या होगा बताइए, हमारे पास बोरोन है तो BH2 हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा ना। क्या हमारे पास BH3 ही तो है, तो क्या होगा बताओ, B हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, बोरोन यहाँ ऐड होगा, सो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। हाइड्रोजन ऐड हो गया, मैं हाइड्रोजन को लिखना नहीं चाह रहा, टाइम वेस्ट क्यों करें। Now the next process is called oxidation। तो भैया इनको हटाओ, इनको जब हटाओगे so you will be getting like this। ओके, अब जैसे हमारे पास अल्कीनॉल होता है तो टॉटोमेरिज्म का पॉसिबिलिटीज हमारे सामने होता है। तो चलो टॉटोमेरिज्म करवा दें, तो डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे गया, तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक CCCCHO। दिस इज कॉल्ड एक एल्डिहाइड है, और आई थिंक CHO ब्यूटेनल, दिस इज ब्यूटेनल। क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते हो ब्यूटेनल, बोलते हो ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 क्या है, 22 प्रोफेसर गिलबर्ट आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करते हैं।
विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए। फाइंड द बेस्ट मेथड। चलिए पहला मेथड है निशिता का जो मेथड है उसके आधार पे हम प्रोडक्ट बनाए, जस्ट राइटिंग द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बना रहे हैं। निशिता का मेथड है और जब इनसे प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट। अब इस कार्बन को देखते हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? इसके तरफ जो कार्बन है, ये कार्बन है, बोथ आर सेम, सो दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। सो निशिता का मेथड गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन बी की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी है तनिष्क मेथड है, वो बड़ा ही अच्छा मेथड लग रहा है, देखते हैं बना के। कार्बोकेटायन जनरेट होगा, पॉजिटिव होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा एंड वी आर गेटिंग लाइक दिस, correct? Yes. So again this is not optical active compound. This carbon देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं लग रहा, मुझे ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो कैसे होगा? ऑप्शन सी की तरफ बढ़ गए। आशुतोष भाई का मेथड है कि हमारे पास पेंट वनीन लीजिए और 2 पोजिशन पे इथाइल ग्रुप, सो पेंट वनीन 1 2 3 4 5, सो पेंट वनीन 2 नंबर पे इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पे HCl ऐड करेंगे तो क्या होगा? कार्बन दिस क्लोराइड आयन विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या होगा बताइए? एक भी नहीं होगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट में कहाँ लिखूँ? यही लिखता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, एक और कार्बन, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो क्लोराइड कहाँ पे जुड़ेगा? क्लोराइड यहाँ जुड़ेगा, क्लोराइड यहाँ पे जुड़ गया। अब इस कार्बन को देखते हैं, क्या इससे 4 अलग अलग प्रकार के डिफरेंट प्रकार के ग्रुप हैं? जी हाँ, यहाँ पे मिथाइल है एंड हियर वी हैव मिथाइल, हियर वी हैव प्रोपाइल एंड हियर वी हैव क्लोराइड। सो दिस पार्टिकुलर कार्बन इज क्या है? दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर आशुतोष भाई का मेथड बहुत अच्छा है। कमल का भी मेथड अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप क्लोरीन ऐड करोगे बीच वाले कार्बन पे तो 3 मिथिल, एक कार्बन से 3 सेम ग्रुप जुड़े हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, this particular question is we have alkyne and adding HCl, चलो कर देते हैं। so CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या करना है? HCl ऐड करना है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बताओ भाई, हमारे पास क्लोराइड आयन कहाँ भागेगा? ऐसे कार्बन के पास, इन दोनों में से जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, तो आगे यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। सो वी आर गेटिंग स्टेप नंबर 1, वी आर गेटिंग CH3 CH2 CCl डबल बॉन्ड CH2। अगला क्या है? आयोडीन अटैक करने वाला है। आयोडाइड आयन क्या है? नेगेटिव पार्ट है। किस पे जाएगा अटैक करने के लिए? दैट कार्बन विच विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन एटम कम है? इसके पास है। तो आयोडाइड आयन भाई ये बोलेगा कि मैं तो यही जाने वाला हूँ, एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज CH3 CH2 C क्लोरीन एंड सेम कार्बन विल हैव आयोडीन आल्सो CH3। सर्च कीजिए वाला ऑप्शन और आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24 व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग? इन द फॉलोइंग रिएक्शन वी हैव, ओके देखो क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, उसमें रीअरेंजमेंट को भूल जाते हैं। सो CH3 CH देन डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। स्टेप नंबर 1, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो आप ये भी बना सकते हो या आप ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताता हूँ इन दोनों में जो स्टेबल लगा मुझे ये ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, तो मैंने क्या बनाया? ये कार्बोकेटायन बनाया CH, ये कार्बोकेटायन बनाया। ओके,
क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि हम और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना पाए? यस। क्या होगा? मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा। सो ये ट्रांसफर होके क्या होगा? शिफ्ट होने के बाद क्या होगा? कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 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 एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज हियर। अब यहाँ पे आपका OH आयन या H2O आके अटैक करेगा और फिर OH2 जब यहाँ अटैक करेगा और आपके पास जो अल्कोहल आएगा, अल्कोहल विल बी CH3 COH here, then CH3 CH3 here, CH3 here। ये वाला प्रोडक्ट आपको चेक करना चाहिए। क्या है यहाँ पे? क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सॉरी शिफ्ट हो रहा है, मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हो रहा है। क्यों? ताकि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले और अच्छा स्टेबल। 25 क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ सारे लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? तो आपके पास कुछ ऐसा है, करेक्ट? सॉरी मिथाइल ग्रुप HBr। कितनी बार बताएंगे हम क्या कि जो ब्रोमाइड आयन है, दिस पार्टिकुलर आयन विल गो टू द कार्बन विच विल हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बन है इसके पास एक भी नहीं है, ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन एटम है। सो दिस विल गो हियर एंड प्रोडक्ट वी विल बी गेटिंग इज लाइक दिस। So this is the product we will be getting। तो सर्च कीजिए ऐसा प्रोडक्ट कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। चौथा प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास बहुत सारे डबल बॉन्ड हैं और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है, तो मैं क्या करता हूँ? अटैक करवा देता हूँ और देखता हूँ कौन स्टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ? H पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, कार्बोकेटाइन बनेगा, उसी के आधार पर आप देख लेना जो स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। पहला ऑप्शन CH2 डबल बॉन्ड C, मान लीजिए यहाँ पे अटैक किया तो क्या होगा? CH2, आई थिंक 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो बताओ यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, बहुत अच्छी बात, स्टेबल है। आगे देखते हैं कैसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं। कोई बेंजीन, हम क्या करेंगे? अटैक करवाएंगे। जब अटैक करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज 3 आया। यस, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसका तो एक ही कार्बन, एक ही जो है डबल बॉन्ड रेजोनेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो बेंजीन का जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस पार्टिकुलर ऑप्शन नंबर 1। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3 में ध्यान से देखो तो क्या है? वी हैव NO2 दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या करेगा बताओ? वो CH पॉजिटिव, ये जो Na2 है ना वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव पे और ज्यादा पॉजिटिव नेचर इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो और क्या करेगा? ये और कम स्टेबल बनाएगा। एंड द लास्ट वन इज ओनली मिथाइल ग्रुप, हाइपर कॉन्जुगेशन ही लग सकता है तो वो इतना ज्यादा स्टेबल हो नहीं पाएगा। रेजोनेंस कम टू बी द सुपीरियर एंड इन दोनों में सुपीरियर में ये ज्यादा स्टेबल बना रहा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 26 हमने देखा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अल्कीन है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और यूजिंग Br2CCl4 ब्रोमीन का एडिशन होना है। तो यू नो व्हाट ब्रोमीन Br2CCl4, इसमें क्या विसिनल ब्रोमीन का एडिशन होता है, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको स्टीरियो आइसोमर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, कैसे कन्फॉर्मर्स बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 27 की तरफ। क्वेश्चन 27, इसमें देखिए मैं पहला वाला जो है सिस वाला जब अल्कीन है उसकी बातें करना चाहता हूँ। तो सिस है, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दिस इज अल्कीन, हाइड्रोजन यहाँ पे,
एंड हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, Br2 क्या करेगा आपको पता ही है। मैं इसको दूसरे तरीके से लिख के बनाता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी लगे। दूसरे तरीके से मैं लिख के बनाता हूँ, इसको एक प्लेन में लिख देता हूँ, एक प्लेन पे लिखता हूँ तो वो आसानी से आपको दिखेगा क्या कि ये जो प्लेन है, ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपका क्या है, अल्कीन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या हो गया आपका, अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, बैक साइड COH, सिंस ये सिस फॉर्म है बैक साइड क्या होगा COH, ठीक है। सामने हमारी तरफ क्या है, हमारी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, यहां भी हमारी तरफ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपका ब्रोमीन है आपको पता है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा Br और ये कुछ ऐसा, ठीक है, और Br नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा वन ऑफ द कार्बन, जैसे यहाँ जाएगा ये ऐसे जाके इसकी तरफ आ जाएगा, यानी कि एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा, ठीक है। ये बॉटम से अटैक कर रहा है और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो टॉप ऑफ द प्लेन है, क्लियर। तो यूजिंग दिस, जब ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा तो COH हल्का सा नीचे, H हल्का सा नीचे आएगा, तो हम लोग 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं, 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये ब्रोमीन नीचे से अटैक कर रहा है तो ब्रोमीन यहाँ पे नीचे में होगा, ये ब्रोमीन यहाँ आके ऊपर में रहेगा तो ब्रोमीन यहाँ पे ऊपर में होगा, क्लियर। ऐसा वाला दिस इज कॉल्ड 100 हर्ट्ज रिप्रेजेंटेशन, ये आपको आता है करने, क्लियर, ठीक है। देखिए ब्रोमीन नीचे से अटैक किया तो ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो गया, ब्रोमीन ये ऊपर में था तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ब्रोमीन ऊपर में आएगा, ठीक है। ये देखो COH हम किधर से देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं किधर से, हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं हम लोग, इस साइड से देख रहे हैं। तो देखो अगर उस साइड से देखोगे तो COH कहां, COH क्या था, प्लेन के उस साइड था, COH क्या था, प्लेन के उस साइड था, यानी कि मेरे किस साइड दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो COOH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया है। हाइड्रोजन आगे था, हाइड्रोजन इस साइड था तो हाइड्रोजन यहाँ पे है। सिमिलरली हम इस साइड से देख रहे हैं तो COH कौन सा साइड है, उस साइड है, तो COH उस साइड है, हाइड्रोजन दिस साइड है। इसको आपको क्या करना है, फीचर प्रोजेक्शन में रखना है, वहां से हमको दिखने में आसानी हो जाती है। आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है इसको घुमा के नीचे की तरफ ले आइए, इसको घुमा के नीचे की तरफ ले, मैं सीधा फीचर प्रोजेक्शन लिखने जा रहा हूँ और उससे जो हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है उससे हम देखेंगे तो क्या होगा, आप COH को नीचे, इस COH को नीचे ले आओ रोटेट करके, तो क्या हो जाएगा, COH इस साइड से देख रहे हैं तो लेट्स से यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, COH यहाँ आ जाएगा, COH नीचे आ गया, हाइड्रोजन हमारे किस साइड है, हाइड्रोजन हमारे राइट हैंड साइड है तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ब्रोमीन किस साइड है, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। COH को नीचे लेके आओ, COH को उठा के नीचे लेके आओ तो ब्रोमीन इस साइड चला जाएगा, ब्रोमीन इस साइड आ गया, हाइड्रोजन किस साइड आ जाएगा, हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और COH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप अटैक करवा रहे हो ट्रांसफॉर्म बनाता हूं मैं, ट्रांसफॉर्म अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, दिस इज C डबल बॉन्ड C और क्या होगा, बैक साइड में आपका COOH है तो आप सॉरी बैक साइड में अगर COH है तो फ्रंट साइड यानी कि आपके इस साइड में क्या होगा, COH होगा, यानी हमारी तरफ होगा COH, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। हाइड्रोजन क्या होगा, बैक साइड होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, आगे हमारी तरफ होगा। अब आप कराओ अटैक कराओ तो क्या होगा, Br पॉजिटिव है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, ब्रोमाइड आयन नेगेटिव अटैक करेगा, किसी भी एक पे अटैक कर दिया तो क्या होगा, ये नीचे में आया। चलिए फिर से हम 100 हर्ट्ज फॉर्म बनाने जा रहे हैं, 100 हर्ट्ज फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होता है। चलिए ब्रोमीन जो है ये नीचे में है, ये ब्रोमीन नीचे में है, सिमिलरली ये ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा तो ब्रोमीन ऊपर चला जाएगा, ओके क्लियर है। चलो हम किधर से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हैं, मॉलिक्यूल को इधर से देख रहे हैं। जब इधर से देखेंगे ब्रोमीन टॉप आया, हाइड्रोजन बैक साइड था, हाइड्रोजन बैक साइड का मतलब ये यानी कि लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट वाला हाइड्रोजन हो गया। COH कौन से था, आगे था, बोर्ड के आगे था, इस बोर्ड के आगे है COH यानी कि साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड है, COH मैं लिख देता हूँ। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा ब्रोमीन नीचे है, ब्रोमीन नीचे है तो हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे यानी कि इस साइड है, इस साइड है मतलब कि अपने राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड हाइड्रोजन हो गया है। और फिर COH क्या है, बोर्ड के उस साइड है यानी इस साइड है तो बोर्ड की साइड है तो क्या हो जाएगा, हमारे लेफ्ट साइड हो जाएगा तो COOH यहाँ हो जाएगा। इसे फीचर पोजीशन लिख लेते हैं, बॉन्ड लाइन रोटेशन लिख लेते हैं। तो COH को नीचे लाओ,
जाओ, COH को तुम नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, COH यहाँ पे आ जाएगा। किधर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो COH नीचे आ गया, तो आपका हाइड्रोजन इस साइड है, ब्रोमीन इस साइड है। COH को उठा के नीचे लाइए, क्या हो जाएगा, COH नीचे आ गया, तो ये लो COH नीचे आ गया। फिर ब्रोमीन की साइड हो जाएगा, बताओ ब्रोमीन हमारा COH को उठा के इधर लाए हैं, तो ब्रोमीन हमारा कहाँ जाएगा, हमारा ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। इसमें देखो हाइड्रोजन सेम साइड है, ब्रोमीन सेम साइड है, यहाँ पे अलग है, तो ये मिरर इमेज बना सकता है, नहीं बना सकता है। क्या ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ऑप्शन देखते हैं। अगर ये मिरर इमेज बना नहीं रहा तो एनांसियोमर नहीं है। यस, दिस इज डायस्टेरियोमर्स, दिस इज डायस्टेरियोमर्स। क्यों, आइडेंटिकल तो दिख ना रहा, आइडेंटिकल नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको किस न्यूमॉन से सॉहर्ट्ज न्यूमॉन से इसमें तो हर चीज आपको आना चाहिए। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मॉलिक्यूल बनाना है, एक साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन A, दिस इज हाइड्रोजन सॉरी विच इज दिस इज हाइड्रोजन B, और दिस इज हाइड्रोजन C, और दिस इज हाइड्रोजन D, समथिंग लाइक दिस आई थिंक गिवन। ओके, नाउ मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो क्या है, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हाइड्रोजन को हटाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैज टू बी वेरी, जो फ्री रेडिकल बनेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बाद दैट हैज टू बी वेरी स्टेबल। तो जो स्टेबल होगा उसी हाइड्रोजन को हटाना आसान होगा। जिस हाइड्रोजन के हटाने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो स्टेबल है, वही हाइड्रोजन हटाना हमें आसान होगा। सो चेक करते हैं, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, स्टेबिलिटीज, स्टेबिलिटीज कहाँ कहाँ से मिलेगी, तो हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, दिस टू आर द पॉसिबल स्टेबिलिटीज इन दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, सो अगर आप इसको हटाओ, यहाँ फ्री रेडिकल बनाओ तो रेजोनेंस प्लस हाइपर कंजुगेशन। ओके, इसको हटाओ, मैं सीधे कमिंग टू दिस पार्टिकुलर आंसर। अगर आप ये फ्री रेडिकल बनाते हो, ये फ्री रेडिकल बनाते हो, so you will enjoy this resonance, also you will enjoy 3 plus 2 5 alpha hydrogen. But if you remove this hydrogen, you will have resonance but you have only 2 alpha hydrogen. So यहाँ पे इस रेडिकल में इस हाइड्रोजन A को हटाने के बाद, दिस इज A पोजीशन, A को हटाने के बाद जो स्टेबिलिटी है वो 5 अल्फा हाइड्रोजन से आ रही है, मतलब 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है। सो HA को हटाना आसान है। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29, इन द फॉलोइंग रिएक्शन वी हैव CH6 यानी कि बेंजीन रिंग है आपके पास, सो बेंजीन रिंग है, देन CH2, देन Br। नाउ मैग्नीशियम ईथर, स्टेप नंबर 1 Mg ईथर, क्या होगा, Mg ईथर क्या होता है, ईथर है। ईथर क्यों है, दिस इज नॉट ए प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्यों होता है, बहुत ही खतरनाक बात है जो मैंने लास्ट किसी एग्जाम्पल में बताया भी था कि जो ईथर जो होता है वो प्रोटॉन नहीं होता है, उसमें प्रोटॉन नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप CH2Br Mg यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन बनाने का प्रयास कर रहे हो। ओके, ग्रिग्नार्ड रीजन बना रहे हो तो वहाँ पे प्रोटॉन की आवश्यकता क्यों नहीं है, या प्रोटॉन नहीं रहना चाहिए, ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन का बहुत बड़ा दुश्मन होता है H+ आयन, एसिडिक H+, वो आपके ग्रिग्नार्ड रीजन को तुरंत खत्म कर देगा और उसका रिस्पेक्टिव अल्केन और रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन दे देगा। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। तो स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। The moment you are putting H3O positive, that is nothing but acidic catalyzed hydration की बात करो, यानी कि आपके पास H+ आयन है, तो क्या होगा बताओ, this carbon is highly negative। क्यों, this is an organometallic compound, this carbon is connected to one of the strongest electropositive element,
So what? This carbon magnesium bond is highly polar toward this carbon. तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। कार्बन को पॉजिटिव कैरेक्टर के स्पीसीज चाहिए होंगे, और जैसे ही आप H प्लस दोगे बोलेगा गाइस, मैग्नीशियम को बोलेगा टाटा बाय बाय, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यू विल गेट 5CH3। यानी कि सर्च करते हैं कोई ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन में कभी भी H प्लस आयन या एसिडिक H प्लस आयन नहीं देते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 30 क्या बोल दिया 30 ने? पेंटेन टू ऑन रिएक्टिंग विथ जिंक Hg। ओके, जिंक Hg जैसे आ गया मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन हो रहा है। पेंटेन टू ऑन लिखते हैं, पेंटेन 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 1 1 2, दूसरे नंबर पर 2 डाल देते हैं। When this will undergo Clemmensen reduction, क्या होगा बताओ? इस ऑक्सीजन को गायब कर दीजिए and you will get respective hydrocarbon, that is C, and this is called zinc Hg and HCl. Clemmensen reduction, this is the product you will be getting. Clemmensen reduction, ठीक है, याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन 31 में क्या बोला? Which of the following compound or ions does not show hyperconjugation? Search for alpha hydrogen। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा वो हाइपरकंजुगेशन शो नहीं करेगा। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? पहला ऑप्शन है एक कंपाउंड है, एक कार्बोकेटायन है, साइक्लिक कार्बोकेटायन है, मिथिल ग्रुप है, पॉजिटिव। क्या इसके अल्फा पोजीशन पे कोई कार्बन है? जी हाँ। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? जी हाँ, एक नहीं दो हाइड्रोजन है। सो वी हैव 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि ये शो करेगा। दूसरा, क्या ये एल्कीन हाइपरकंजुगेशन शो कर पाएगा? देखते हैं। अल्फा पोजीशन क्या हाइड्रोजन है? जी हाँ, 2 हाइड्रोजन है, शो करेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 इसका अल्फा पोजीशन क्या है? दिस इज अल्फा पोजीशन। क्या इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है? जी नहीं, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। दैट मीन्स दिस, यहाँ इस पार्टिकुलर पोजीशन पे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स ये जो है हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, यही है जिसमें हाइपर कंजुगेशन शो नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32, which of the following alkene is most stable? 32 most stable, so search for highly substituted or let's highly substituted मतलब क्या है? ब्रांच बहुत सारे होने थे पार्टिकुलर अल्कीन के। पहला अल्कीन, या सर्च फॉर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more number of alpha hydrogen that will have more hyperconjugative structure and that will have more stability. So option number 1 बताओ, 1 2 3। so कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 1 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन दिखाओ। दूसरा ऑप्शन दिस लाइक दिस, 2 + 2 4 alpha hydrogen. Third option is like this, 1 alpha hydrogen. Fourth option is like this, 3 + 3 6 + 2 8 alpha hydrogen। 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड उतनी स्टेबिलिटी। सो आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे हम सभी मिलके। क्या है 33? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, CH3O, so CH3O CH2 positive, this is more stable than CH3 CH2 positive. यस, क्यों? क्योंकि इसको क्या है, बगल वाले ऑक्सीजन से हेल्प मिलने वाला है।
बगल वाले ऑक्सीजन से हेल्प मिलने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। मिथिल, दो मिथिल हैं CH पॉजिटिव, सो Me2CH पॉजिटिव is more stable than CH3 CH2C. This is more stable than CH3 CH2 पॉजिटिव। देख लो भैया, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये आगे निकल के स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है। थर्ड ऑप्शन बता रहा है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव अल्लाइलिक कार्बोकेटाइन है। दिस इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस है, ऑब्वियस सी बात है। CH3 CH2 ऑब्वियस सी बात है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। दिस इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 पॉजिटिव। नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये अनस्टेबल हो रहा है। क्यों? sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन एक तो इसको कोई स्टेबिलिटी प्रदान नहीं कर पा रहा, दूसरा sp2 कार्बन होने के कारण s करेक्टर ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है तो क्या, पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाता है। पर कार्बोकेटायन में पॉजिटिव कैरेक्टर कम करना ही स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये रिवर्स कर रहा है, ये गलत है। पर यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन 33 किया, अब बढ़ते हैं 34 पे। क्वेश्चन इज कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। देखते हैं हम 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, 3 कार्बोकेटायन है, उसकी स्टेबिलिटी को आपको अरेंज करना है। पहला है दिस इज CH3 CH2 पॉजिटिव एंड CH3 मिथिल ग्रुप, हाइड्रोकार्बोनेशन से स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। देन वी हैव CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन एंड CD3, यस आइसोटोप्स हैं। CT3, ओके। अब आपको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CH CD एंड CT, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, ऐसा होता है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे वीक होता है, कार्बन ट्राइटियम का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सबसे स्ट्रांग होता है। क्लियर? ओके, तो ये स्टेबिलिटी बताने में क्या हेल्प करेंगे। देखिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगा ना। आप देखे होंगे जब हाइपर कॉन्जुगेशन लिखते हैं तो उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, यानी कि आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हो और उसके इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हो अलग जगह। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ के डीलोकलाइज करने का ऐसा हमें दिखता है कि सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो इसको तोड़ना आसान होगा। इसको तोड़ना आसान होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसानी से होगा, और जब हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत आसानी से होगा तो आपको क्या लगता है कि ये जो रेजोनेंस है सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी और कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, यहाँ बहुत मुश्किल होगा। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। देन 1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, 2 की स्टेबिलिटी बाद में आएगी और 3 सबसे कम स्टेबल बनेगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कैटायनेज, क्वेश्चन नंबर 35। मोस्ट स्टेबल, पहला देखते हैं, पहला क्या है, ठीक है, we have NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव। अब देखो इस कैटायन को ये कार्बोकैटायन है, इसको स्टेबिलिटी कौन दे सकता है, इस बेचारे को कोई स्टेबिलिटी प्राप्त हो ही नहीं रहा है, इसकी बात नहीं कर पाएंगे। दूसरा,
देखो इसको यस इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ज्यादा है, 3+3+1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी इसके पास हाइड्रो कंजुगेशन की स्टेबिलिटी मिल रही है विद 7 अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। इसके पास समथिंग सुपीरियर क्या है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस इसके पास है, ये देखिए ये रेजोनेंस इसके पास है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 को अल्फा हाइड्रोजन ही मिल पाएगा, दैट इज 1+1 2। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, NH2 बनाया। तो देखो नाइट्रोजन भी कंजुगेशन में नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन हियर 1 हाइड्रोजन हियर, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, पर यहाँ पे रेजोनेंस मिल रहा है, जिसके कारण क्या है सबसे आगे वो निकल जाएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो बोथ टॉटोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 36, टॉटोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोथ। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, ध्यान से देखेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ मिथिल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इथिल है, तो चारों अलग अलग प्रकार के ग्रुप उस कार्बन से जुड़े हैं। सो यस दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, बट दिस कैन नॉट शो योर टॉटोमेरिज्म, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, सो यहाँ पे एक है। अब इस कार्बन के अक्रॉस देखते हैं, तो ये ध्यान से देखो, एक जगह मिथिल, एक जगह क्या है कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, एक जगह कार्बन है जिसके साथ सिंगल बॉन्ड है, और एक हाइड्रोजन है, यानी कि इस पार्टिकुलर कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। जब डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो क्या बोलते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। एक चीज, दूसरी चीज क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, देखते हैं कैसे शो करेगा, बताओ बताओ कैसे शो करेगा। क्या ये हाइड्रोजन ऐसे टूट के यहाँ पे ये ऐसे और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाए, तो क्या ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन पाएगा क्या? यस, यानी कि ये टॉटोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी दिखा रहा है, साथ ही साथ टॉटोमेरिज्म भी शो कर रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता, ऑप्शन नंबर 4 भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा रहा, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बताइए, बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये थियोरेटिकल कंपाउंड, हर जगह OH जोड़ दिया आपने, ओके, हर जगह OH जोड़ने के बाद पूछ रहे हैं कि इसका कीटो आइसोमर कैसे बनेंगे। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, ये टूटेगा, इसको यहाँ पे ले जाइए और इस हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ेंगे, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये इसके साथ कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, क्या होगा, ये ऐसे टूटेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। उसके बाद इसके साथ कुछ नहीं होगा, यानी कि अल्टरनेट ऑक्सीजन का हाइड्रोजन टूट भाग रहा है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखिए कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, ये बनेगा कुछ ऐसा। आपने क्या किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दिया है, इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे आपने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया है, फिर यहाँ पे OH बनाया है, फिर क्या हुआ है, ये यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया है, फिर क्या हुआ है, यहाँ पे OH बना है, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा टॉटोमेरिज्म के बाद। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38,
हमारे पास 3 डिफरेंट कंपाउंड हैं, पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो पहला कंपाउंड है CH3, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव यहाँ पे है, हाइड्रोजन है, एंड N मिथिल 2 डाल देता हूँ, ठीक है। अगला है हमारे पास CH3, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, एंड OH है, एंड अगेन N Me2 मतलब मिथिल 2 मिथिल, ठीक है। तीसरा है CH3 COH और डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये CH3 अगर मिथिल 2। तो इसको स्टेबिलिटी के आधार पे बताना है, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि क्या ऑक्टेट स्टेबिलिटी सबकी है। तो यहाँ पे हर एटम की ऑक्टेट स्टेबिलिटी है, यहाँ ऑक्सीजन की है, कार्बन की है, और कार्बन की नहीं है, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे पीछे जाएगा। ऑक्टेट स्टेबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए। क्या यहाँ पे सब एटम की ऑक्टेट स्टेबिलिटी है? इसकी है, इसकी है, इसकी, हाँ सबकी है। तो ये और ये आगे निकलेंगे, ये बंदा पीछे चला जाएगा, यानी कि जो 2 नंबर का जो आपका मॉलिक्यूल है वो सबसे पीछे चला जाएगा। अब इन दोनों में क्या समानता है? दोनों ऑक्टेट स्टेबल हैं, हर एटम के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स है। डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन, एक में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, एक में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो क्या पता आपको होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज शुड प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा अच्छा लगता है हमें? नाइट्रोजन पे। किस में नाइट्रोजन है? ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ये तीसरा नंबर बंदा है, ये दूसरा नंबर बंदा है, ये पहला नंबर बंदा है, तो तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो थोड़ा सा कम स्टेबल है, और इसके पास तो ऑक्टेट ही नहीं है, तो ये सबसे पीछे गया। क्वेश्चन नंबर 39 की बातें करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड है ओ और हेटेरोएटॉमिक, ओ हेटेरोएटॉमिक, देन वी हैव बी, देन वी हैव डबल बॉन्ड। ओके, सो पूछ रहा है कि दिस पार्टिकुलर कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्या ये एरोमेटिक होगा? जी हाँ, दिस इज द पॉसिबिलिटीज। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके बाद क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? ओके, सो पहले तो देखना एरोमेटिक कैसे होगा, बताओ कैसे होगा। ये देखो, ये ऐसे जाएगा, 2 + 2 टोटल 6 pi electrons are available. Ring current is also available. So this is क्या होगा? दिस पार्टिकुलर कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपका एरोमेटिक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा ऑप्शन जो बताया है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर, आप बोलोगे सर OH नजदीक में है, ऐसे कैसे हो सकता है ये स्टेबल? ये वाला कैसे हो जाएगा? ये वाला जो है आप जो बोल रहे हो, ये कैसे स्टेबल हो जाएगा? करेक्ट है, हाइड्रोजन, एवरीवेयर हाइड्रोजन। कैसे स्टेबल हो जाएगा? तो दिस इज कॉल्ड समथिंग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताओ कितने मेंबरिंग है? 1 2 3 4 5। क्या? सो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा? अरे 4 मेंबरिंग ना। सो इंट्रामोलिक्यूलर देख रहे हो ना, इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। करेक्ट, सॉरी है। ठीक है, ऐसे तो इसके कारण ज्यादा स्टेबल होगा। किसके से? इससे। यहाँ पे ओनली क्या है? आप बोल रहे हो कि सर ये क्या है? ये ज्यादा रिपल्सन कम है, रिपल्सन कम है, रिपल्सन को मिनिमाइज किया है, रिपल्सन को मिनिमाइज किया है। पर यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स समथिंग कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो ज्यादा डोमिनेट है, तो ये बंदा आगे निकल जाएगा किसमें? स्टेबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं।
ऑप्शन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, लेस जो स्टेबल अल्कीन होता है उसका ज्यादा होता है, मोर स्टेबल अल्कीन का कम होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो आपको देखना है कि स्टेबल कौन होता है, जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा वो कम स्टेबल अल्कीन, जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम वो ज्यादा स्टेबल अल्कीन। तो उसमें देखो आपका क्या है, पहला वाला इज लेस स्टेबल अल्कीन। सो ऑब्वियसली बात है उसका एचओएच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर तो मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है कुछ ऐसा, क्लियर। क्या इसको देख के आपको नहीं लगता कि ये एंटी एरोमेटिक है? मैं देखो ये कर दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं, तो क्या आपको एंटी एरोमेटिक नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो अच्छी बात है, आपने पता चला लिया कि ये एंटी एरोमेटिक है। चलो अगला ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा वाला। एंटी एरोमेटिक आर वेरी अनस्टेबल्स। इनके पास रेजोनेंस है भाई, इनके पास रेजोनेंस है। ठीक है, यस। तो बताओ कैसे करेंगे। दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये सबसे पीछे चले जाएगा ये वाला। क्यों? ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक्स आर वेरी अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। अब मुझे बताओ इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे। इन दोनों में यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण दो सबसे आगे और फिर अंत में बच गया तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 41 दिखाओ। 41 की बातें करते हैं। क्वेश्चन 41, अमॉन्ग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, स्टेबिलिटी देखनी चाहिए। स्टेबिलिटी कौन सी, ऑक्टेट स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे सब में ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चार्ज की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। वैसा चार्ज नाइट्रोजन के बगल में, नाइट्रोजन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन के बगल में आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया और नाइट्रोजन के बगल में नेगेटिव चार्ज रख दिया, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव रखना ज्यादा स्टेबल होगा। कौन कम स्टेबल होगा? पॉजिटिव रखना। नाइट्रोजन का काम ही है नेगेटिव चार्ज को खींचना और पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ाना। जैसे मैं एक सिंपली ड्रॉ कर दे रहा हूं आपको, पहला ही ऑप्शन ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये बनाया, ठीक है, एक ये बनाया। तो अब ध्यान से देखो, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन के बगल में है भाई मेरे, तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, बहुत ही अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? नाइट्रोजन खींचेगा और यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ा देगा, ठीक है। स्टेबलाइज होने के लिए क्या है, जब भी कार्बोकेटायन को स्टेबल करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करते हैं। जब भी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी हमें बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं। यही करते हैं ना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कम कीजिए और नेगेटिव है तो नेगेटिव को कम कीजिए, स्टेबल हो जाएगा। पर यहाँ पे इस बेचारे नाइट्रोजन ने यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर और बढ़ा दिया, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या है, ये एक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा वाले ऑप्शन में यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है। ऑब्वियसली जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो इससे तो ज्यादा स्टेबल है। तीसरे वाले में देखा अगर आपने ध्यान से, तो तीसरे वाले में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव काफी दूर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नाइट्रोजन से काफी दूर चला गया है पॉजिटिव। और चौथा वाला भी पॉजिटिव काफी दूर है एंड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा, जो कि सबसे कम स्टेबल। क्वेश्चन 42 रेजोनेंस इज नॉट शोन बाय, रेजोनेंस इज नॉट शोन, अंडरलाइन नॉट। सो सर्च कीजिए ऐसे ऑप्शन जिसमें कंजुगेशन में आपका चार्ज ना हो, कंजुगेशन में चार्ज ना हो, चार्ज कंजुगेशन में ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम बना रहे हैं, सॉरी 42। पहला बेंजीन रिंग है, देन C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव। सो यार रेजोनेंस यहाँ पे देखा जा सकता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है।
दूसरा ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, एंड वी हैव CH2 नेगेटिव। तो यस, रेजोनेंस हो सकता है। आपका तीसरा ऑप्शन बताओ, तीसरा ऑप्शन क्या है? CH2 नेगेटिव। तो रेजोनेंस के लिए कंजुगेशन में होना चाहिए था, इसके कंजुगेशन में कुछ नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आपका रेजोनेंस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43, among the following the number of aromatic compounds are, number of aromatic compounds are, पहला is not, because you know वो टब जैसा स्ट्रक्चर ले लेता है और प्लेनार नहीं रहता है। दूसरा जो है आपका that have 4 pi electrons, 4 pi electrons नहीं होना चाहिए, हमारे पास कितना होना चाहिए? 4n+2 pi electrons होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाएगा। तीसरा मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, दिस इज प्लेनार, this will have 2 pi electrons, real current available, so this is aromatic. फोर्थ ऑप्शन रेजोनेंस तो है, बट क्या है? 6 pi electrons नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन इज दिस, this is yes aromatic, 6 pi electrons, ring current available, planar structure, aromatic। सिक्स्थ नहीं है, सिक्स्थ में आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेवंथ आपका एक रेजोनेट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, और इसमें है टोटल 2+2+2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज आल्सो ए एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद देखो जो आपका थर्ड नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ वाला है, इसमें एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है मतलब एरोमेटिक है। नाइन्थ वाले में आपका 3-3-2, हाँ इसमें 2-2 बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है, मतलब क्या हो गया? मतलब कि एरोमेटिक है। हाँ अब बताओ कौन सा जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण क्या हो जाता है कि ये कार्बन एंड दिस पार्टिकल बोथ आर नॉट इन वन प्लेन। क्या ये सबको क्लियर है? बोथ हाइड्रोजन ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन दिस टू हाइड्रोजन, जो कार्बन है दे आर नॉट इन सेम प्लेन। The moment they are in not same plane, the ring current will not, it is not available, resonance नहीं हो पाएगा। और जब resonance नहीं हो पाएगा तो आप aromatic के बारे में बात ही नहीं कर पाओगे। So this is not, आप बोलोगे सर, सब बोले सर यहाँ देखो ना सर, कंजुगेशन 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 कंजुगेशन। यस, पर आप लोग भूल जा रहे हो, ये जो 2 हाइड्रोजन है जिसको छुपा के रखा गया है, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये रिपल्सन के कारण क्या करते हैं? दोनों कार्बन को अलग अलग प्लेन में ले आते हैं, और जिसके कारण रेजोनेंस नहीं हो पाता है। सो यस वी हैव 1 2 3 then 4 and then total 5 we have, total 5 aromatic compounds are there। Question number 44, question 44, compare basic strength। we have nitrogen, then we have oxygen, nitrogen, and we have only nitrogen। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? आप ऐसे समझ लो, तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से हम बेसिक स्ट्रेंथ को समझना पसंद करेंगे। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड रहें, अवेलेबल रहें, ताकि किसी और को डोनेट किए जाए। जितनी आसानी से वो डोनेट किए जा सकते हैं, जितनी आसानी से वो डोनेट किए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब देखिए, सब में डिफरेंस क्या है? तीनों में क्या डिफरेंस है? एक में नाइट्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, एक में कार्बन है, यानी कि 3 डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं पोजीशन पे। तीनों की क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। इसकी क्या होती है? कार्बन की 2.5 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3.0 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है उससे क्या मतलब होने वाला है?
ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और सबसे ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल सबसे कम रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल सबसे कम रहेंगे तो क्या होगा बताइए कि दूसरा नंबर का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम दिखेगा। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन है, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन भी खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा कम है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास उतना पावर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा पर उतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा। तो क्या होगा बताइए, तीसरा सबसे ज्यादा बेसिक होगा इन तीनों में। सर्च कीजिए, ऑप्शन मिलाइए, सी आएगा ऑप्शन, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 45, Which of the following compound is least basic? लीस्ट का मतलब सबसे कम। चार वो मॉलिक्यूल है उसको बना लेते हैं। एक तो है एनिलीन, NH2, एनिलीन NH2, आपको पता है ये रेजोनेंस में चला जाता है कुछ समय के लिए। ओके, दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है बताओ, NH2 यहां भी है, और इसके साथ ही साथ NO2 भी है भैया। ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने में माहिर है, ये रेजोनेंस है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने तरफ। तो भाई देख लो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो चला गया नीचे की तरफ। बाकी को ऑप्शन देखे, इन दोनों में कौन कम बेसिक होगा, दिस नाइट्रो ग्रुप वाला कम बेसिक दिखाई दे रहा है। लेट मी पुट बेंजीन रिंग CH2NH2। भाई साहब ये सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो वो लोकलाइज्ड रहेगा, डीलोकलाइज्ड नहीं हो पाएगा। और जो चौथा ऑप्शन है वो इन दोनों से भी ज्यादा है, एंड दैट इज सिंपल CH3 CH2NH2। तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लीस्ट बेसिक, तो कौन सा होगा, नाइट्रोएनिलीन। आपका क्या होगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हैं। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी में दीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।